Hello, hi, good morning. So we have started the agile methodology development and on this agile method development हम लोग ने देखा था कि बहुत सारे प्रोसेस है अलग अलग स्क्रम जो एक उसका जो इसकी एक मेथड है वो मेथड हम लोग ने देखी थी वो कैसे यूज करनी है वो कितनी इफेक्टिव है और यूजिंग स्क्रम हाउ वी कैन डिजाइन द इफेक्टिव सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनर वो भी हम लोग ने देखा उसके मेथड्स क्या है प्रोजेक्ट ओनर क्या रहता है या फिर वो टीम वर्क में टीम कोलैबोरेशन उसमें कैसे इम्प्लीमेंट होता है वो सारी चीजें हम लोग ने देखी थी ओके सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस इन अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी जो है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग सो वो देखते हैं आज के लेक्चर में हम लोग वही देखने वाले एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग क्या है ओके okay so as the name suggests XP stands for extreme programming and this technique is very useful when there is constantly changing demands or requirements from the customers means customer requirements are not stable कस्टमर बार बार बोल रहा है कि ये करो या फिर वो जो चेंजेस है उसके वो रैपिडली चेंजेस में अगर फेस कर रहा हूँ सो आई प्रेफर दिस एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग मॉडल ठीक है और व्हेन दे आर नॉट श्योर अबाउट द फंक्शनलिटी ऑफ द सिस्टम या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि कस्टमर को ही पता नहीं है कि उसे कैसे बनाना है उसके दिमाग में आइडिया है बट ही कैन नॉट अश्योर हाउ द डिजाइन ऑफ his individual software is going on so on that occasion on that point we can go ahead with the XP model okay it advocates frequent releases of the product in short development cycles so like version 1.1.1 after that after the completion of individual version I release that individual version and see the review uh, reallocate the feedback of the customer and if the feedback and the review is too good is positive then I can go ahead with the rest of the project otherwise I will fix the issues the problems the errors which are occurred in my previous releases okay so that kind of releases will help us to improve the quality of software and reduce the risk of the software so ultimately this will be our useful programming model which inherently improves the productivity of the system okay so ultimately productivity भी बढ़ती जा रही है क्योंकि मैं release version कर रहा हूँ instead of releasing the entire software project okay and also introduces checkpoint where any customer requirements can be easily implemented so I am implementing here I am implementing one more thing here which is checkpoint so checkpoint क्या है I am trying something different and if that different gets failed then I am back to that individual checkpoint and fix the issue and release the new version अगर वो नहीं हो रहा है तो वो checkpoint मुझे useful रहने वाली है मेरे project में if my idea if my newly coming idea is not getting success not getting the way as I wanted so ये चेक पॉइंट मुझे हेल्पफुल रहने वाले ठीक है ओके एंड द बॉटम लाइन इज द एक्सपी डेवलप्स सॉफ्टवेयर कीपिंग कस्टमर इन द टारगेट मतलब इसमें टारगेट क्या है मेरा कस्टमर ही टारगेट है unless and until we cannot satisfy his requirement his wants then we cannot go ahead with the next stages next releases okay so customer के लिए मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ कस्टमर ही टारगेट है so अच्छा ही है और वो यूजफुल भी है उतना इफेक्टिव वो रहने वाला है okay see here the following figure shows the वर्क फ्लो या फिर हम लोग बोल सकते हैं डायग्राम ऑफ एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग ओके सो फर्स्ट क्या है प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट जैसे कि हम लोग कम्युनिकेशन के बाद प्लानिंग करते हैं तो कम्युनिकेशन में हम लोग पहले गैदर क्या करते हैं ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट ओके सो एट द इनिशियल स्टेज आई एम गैदरिंग the project requirements okay after that implementing stories that stories will be my user story और user story क्या है I told you about the user stories in the last lecture okay so आपको पता होगा नहीं पता है तो एक बार वो रेफर करो वीडियो शॉर्ट में बोल देता हूँ इट इज द वी कैन से ये छोटा टास्क रहता है विच टेल्स अस मुझे अभी करंटली कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है ओके दैट इज नथिंग अबाउट अवर स्टोरीज यूजर स्टोरीज ओके उसके बाद है टेस्ट केसेस अभी टेस्ट केसेस क्या है
So while we are dealing with the testing, software testing, so we generate test cases. ये इसके बारे में हम लोग ने पूरा सेमेस्टर इन्वेस्ट किया इसके बारे में, टेस्ट केसेस के बारे में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में हम लोग ने पढ़ा. ओके, उसके बाद टास्क. नाउ अभी आप लोग बोलेंगे कि आप लोग ने मैंने बोला कि स्टोरीज में भी टास्क है और अभी ये टास्क दूसरा भी आ रहा है. यूजर स्टोरी इज द काइंड ऑफ प्रोफेशनल टास्क और वी कैन से द मोमेंटम ऑफ दैट इंडिविजुअल एक्टिविटी. और टास्क मतलब जहाँ पे मैं एक्चुअल कुछ कोडिंग या फिर टेस्टिंग करने वाला हूँ. ठीक है, यूजर स्टोरीज में क्या है, वो टास्क का नाम है, मुझे ये करना है और यहाँ पे मैं एक्चुअल उसका इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूँ. ओके, आफ्टर परफॉर्मिंग दिस इंडिविजुअल टास्क. Okay, so after completion of each task, the iteration is goes to the iteration planning meeting where the actual iteration is going to release. Before that, the customer will passes the input towards that planning meeting. अभी ये this input is nothing about the customer requirement. It is the bunch of requirements which holds by customer. Okay, and that iteration is now turns into the acceptance test. अभी acceptance test हम लोग कब करते हैं, at the last of the series. Okay, so acceptance test कब होने वाला है, accept कब करेगा. acceptance test में क्या होता है, customer accept the software product, and when customer is going to accept our software product, the three parameters are there. First is within delivery, मतलब मैंने बोला था कि फर्स्ट मे को मैं डिलीवर करूंगा तो वो फर्स्ट मे को ही होना चाहिए. देन सेकंड इज ऑन टाइम, सॉरी विद इन टाइम हो गया. देन द नेक्स्ट इज ऑन विद इन बजट. विद इन बजट इज नथिंग अबाउट, मैंने बोला था कि द बजट ऑफ दिस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज, सपोज हम लोग कंसिडर करेंगे कि 50,000 रुपए. ठीक है, सो इफ आई वुड से 50,000 rupees, then on the word promise I have to complete that project on based on या फिर using those 50,000 rupees. अगर मैंने ऐसे बोला कि वो 70,000 हो रहा है तो फिर वो प्रॉमिस ब्रेक हो रहा है एंड कस्टमर वुड नॉट एक्सेप्ट अवर प्रोजेक्ट एज इट इज. ओके, सो उसके लिए कस्टमर टेस्टिंग भी है जो वो खुद के टेस्टिंग मतलब वो टेस्ट करेगा, रिव्यू देगा कि सॉफ्टवेयर कैसे बनाया है वो. ठीक है, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में. और यही टास्क इटरेशन में घूम रहा है until and unless it achieve the functionality which mentioned by the customer and which is said by the developer. So ये जब तक नहीं होता तब तक वही लूप में घूमने वाला है, वही प्रोसेस रिपीटेडली फॉलो अप होने वाली है. ओके ओके, so see here, business requirements are gathered in terms of stories. All those stories are stored in a place called the parking lot. Okay, parking lot में वो सारे store है. In this type of methodology, releases are based on the shorter cycles called iterations with span of 40 days time period. Each iteration includes phases like coding, unit testing and system testing, where each phase some minor or major functionality will be built in the application. Now what is this unit testing and system testing, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले. फोकस करो कि वो 40 days ऑफ पीरियड का एक शॉर्ट साइकिल रहता है एंड ऑन दैट साइकिल we have to complete our entire project and release the iteration, release the basic version of software. Okay, now here are 6 phases, different phases available in agile XP method. And first is planning. Okay, so planning में क्या करेंगे हम लोग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टैक होल्डर्स एंड स्पॉन्सर्स. उसका आइडेंटिफिकेशन कौन कौन है, स्टैक होल्डर्स और स्पॉन्सर्स कौन है. देन इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज करने वाला हूँ. सिक्योरिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड गैजेट, वो भी इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट है, रिस्क नहीं आनी चाहिए. और उसके बाद है सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स एंड इट्स कंडीशंस. ओके, देन आफ्टर दैट एनालिसिस. एनालिसिस में मैं क्या करूंगा, कैप्चरिंग ऑफ स्टोरीज इन पार्किंग लॉट. जो स्टोरीज मैंने बोली थी वो पार्किंग लॉट मतलब वो एक जगह पे कहाँ पे तो मैं स्टोर करने वाला हूँ. ओके, सो आई एम कैप्चरिंग दैट स्टोरीज इन माई parking lot. Okay, then prioritize stories in parking lot. Then assign the priority to individual stories. Like priority मतलब अगर first priority है तो उसे पहले मैं solve करूंगा, second है तो वैसे, मतलब priority मतलब मैं उस पे वो बोल रहा हूँ कि वो कितना important है मेरे लिए. उसके बाद है scrubbing of stories for estimation. उसे मैं और explore कर रहा हूँ for estimation. Then define iteration time, कितना टाइम लगने वाला है, ये सब एनालिसिस में आ रहा है. And last is resource planning for both development and QA teams. Okay,
उसके बाद डिजाइन, डिजाइन में क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ टास्क, मैं छोटे छोटे टुकड़े में उसे ब्रेक डाउन कर रहा हूँ। टेस्ट सिनेरियो प्रिपरेशन फॉर ईच टास्क, उसके बाद इंडिविजुअल टुकड़े को मैं टेस्टिंग अप्लाई कर रहा हूँ, टेस्ट कैसे हो सकती है या फिर कैसे करनी चाहिए वो मैं सिनेरियो अप्लाई कर रहा हूँ। एंड रिग्रेशन ऑटोमेशन फ्रेमवर्क, रिग्रेशन मतलब क्या, रिग्रेशन मतलब आई हैव टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर व्हाइल रिग्रेशन टास्क। ओके, सो डिजाइन करते टाइम में वो ऑटोमेशन फ्रेमवर्क का रिग्रेशन करने वाला हूँ। एग्जीक्यूशन में क्या है, एक्चुअल कोडिंग। यूनिट टेस्टिंग क्या है, ये सेकंड चैप्टर में एक स्पेशल टॉपिक है, वहां पे मैं बोलूंगा यूनिट टेस्टिंग। अभी सिर्फ इतना ही बोल देता हूँ, यूनिट टेस्टिंग में मैं इंडिविजुअल यूनिट को टेस्ट कर रहा हूँ। जैसे कि मेरा व्हाट्सएप है, इंटायर पूरा सॉफ्टवेयर है, तो उसमें इंडिविजुअल यूनिट क्या है कि डीपी सेट हो रहा है कि नहीं, या फिर चैटिंग हो रही है कि नहीं, मैं स्टोरी पुट कर सकता हूँ कि नहीं, ठीक है, ये इंडिविजुअल यूनिट, तो यूनिट टेस्टिंग में वो पार्ट आ रहा है, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद है एग्जीक्यूशन ऑफ मैनुअल टेस्ट सिनेरियोस, एक मैनुअल रहती है टेस्ट, और एक यहाँ पे देखा ऑटोमेशन टेस्ट। ऑटोमेशन मतलब ऑटोमेटिक होने वाली टेस्टिंग, और मैनुअल मतलब मैं खुद से करने वाला हूँ। अभी ऑटोमेटिक मतलब मशीन जनरेटेड टेस्ट, और यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट क्या कर रहा हूँ, तो मैनुअल टेस्ट कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद डिफेक्ट रिपोर्ट जनरेशन, तो बहुत सारे एरर आने वाले हैं, उसका रिपोर्ट बनाने वाला हूँ। देन कन्वर्जन ऑफ मैनुअल टू ऑटोमेशन रिग्रेशन टेस्ट केसेस, जो मैनुअल है उसे मैं ऑटोमेशन टेस्ट में कन्वर्ट करूंगा फॉर माई बेटर क्वालिटी एक्सपीरियंस। ओके, उसके बाद है मिड इटरेशन एंड एंड इटरेशन रिव्यू, मतलब मिड टर्म में मैं रिव्यू दूंगा इटरेशन को, और खत्म होने के बाद एक बार फिर से रिव्यू दूंगा, ताकि मुझे पता चले कि मेरा काम कैसे चल रहा है, एंड मैं और क्या इम्प्रूवमेंट उसमें कर सकता हूँ। ओके, देन द नेक्स्ट टास्क इज रैपिंग। रैपिंग में क्या होगा, स्मॉल रिलीजेस, छोटे छोटे रिलीजेस में डालने वाला हूँ, 1.1.1 1.1.2 या फिर 1.2 या फिर 2.0.0। ओके, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, या फिर जो क्रिटिकल चेंजेस है उस पर वो सब डिपेंड रहेगा। देन आफ्टर दैट रिग्रेशन टेस्टिंग, डेमोज एंड रिव्यूज। ओके, रिग्रेशन टेस्टिंग मतलब मैंने बोला क्वालिटी अचीव करने वाला, डेमोज लूंगा एंड रिव्यूज, डेवलप न्यू स्टोरीज बेस्ड ऑन द नीड। अगर कुछ चेंजेस बोले कस्टमर ने, सो आई हैव टू ऐड दैट चेंजेस एंड डेवलप अ न्यू स्टोरीज। मतलब मैं यहाँ पे सिंपली अपडेट कर रहा हूँ जो मेरी स्टोरीज है वो। प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स बेस्ड ऑन एंड ऑफ इटरेशन रिव्यू कमेंट्स। ओके, ये सब होने के बाद अभी मैं क्लोजर कर रहा हूँ, क्लोजर मतलब खत्म कर रहा हूँ, टास्क को खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि लाइफ टाइम मुझे वही सॉफ्टवेयर को पकड़ के चलना है क्या, या फिर वही सॉफ्टवेयर डेवलप करना है क्या, सो नो। सो एट दैट टाइम आई एम गोइंग टू लॉन्च माई सॉफ्टवेयर एट द पायलट बेस्ड वर्जन। मतलब पायलट लॉन्च मतलब क्या, मैं वहां पे एक्चुअली लॉन्च नहीं कर रहा हूँ, आई एम only releasing the demo version of software, or we can say the trial version of software. Okay, उसके बाद ट्रेनिंग, ट्रेनिंग मतलब वो एप्लीकेशन कैसे यूज करना है, उसके लिए फिर एक मैनुअल्स या फिर यूजर गाइड जो कुछ भी है वो उसकी ट्रेनिंग। हाँ, उसके बाद एक्चुअल प्रोडक्शन लॉन्च, एंड देन SLA गारंटी अश्योरेंस। SLA is nothing about, okay, then review SOA strategy और प्रोडक्शन सपोर्ट। अभी ये इतना कुछ ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। क्लोजर मतलब क्या, मैं सॉफ्टवेयर बेसिकली क्लोज कर रहा हूँ, दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। सो उतना अगर आपको समझ में आ गया, सो वो भी बहुत काफी इनफ है। तो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के प्रैक्टिसेस क्या है, उसके फीचर्स क्या है, और हम लोग क्यों यूज करने वाले, ये हम लोग ने देखा। एक बार रिवाइज करो, गूगल करो, पीपीटीज ढूंढो, और देखो वो कैसे वर्क हो रहा है, एक्चुअल में कैसे काम होता है, ठीक है। सो और आपको वो हेल्पफुल रहेगा, और आप लोग उसमें नॉलेज एक्सप्लोर कर। ओके, सो आई होप कि हम लोग ने चैप्टर 1 में जितने भी कंसेप्ट है वो सब क्लियर कर लिए। अगर कुछ बाकी है तो हम लोग वो नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, बट इन माई ओपिनियन वी आर डन विद द ऑल कंसेप्ट ऑफ प्रेजेंट इन चैप्टर 1। बट यस, अगर कुछ बाकी है तो हम लोग वो कवर कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट वीक से फिर हम लोग अपना चैप्टर 2 है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर 1 ही बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें फ्रेमवर्क एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटरफॉल, स्पाइरल और अजय, ये उसके बाद इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है। अभी आपका ऑनलाइन आई गेस एग्जाम ऑनलाइन ही रहने वाला है, सो बाय हार्ड करने की या फिर कुछ ऐसा थियोरेटिकल पार्ट रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपना पूरा थियोरेटिकल पेपर है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेस ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंसेप्ट, और आपको पॉइंट तो याद रखना ही है, MCQ में भी वो पॉइंट आने वाली है, वो क्वेश्चन से वैसे ही रहने वाले, ठीक है। तो आप लोग को वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं जो टॉपिक बाकी है वो, या फिर चैप्टर 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।